This case before us deals with the asymmetric federal model of governance in India involving the contest of power between a union territory and the union government. The issue is who would have control over the services in the National Capital Territory of Delhi, the government of the NCTD or the Lieutenant Governor acting on behalf of the union government. The question arose subsequent to a notification dated 21 May 2015 issued by the Union Ministry of Home Affairs. The limited issue for the consideration of this constitution bench only relates to the scope of legislative and executive powers of the centre and NCTD with respect to the term services. That is to say, whether the NCTD or the union government has legislative and executive control over services. Then we deal with the constitution bench of 2018 and say, we are unable to agree with the view of Justice Bhushan in the 2019 split verdict. As indicated previously, the majority decision in the 2018 Constitution Bench judgment rendered a broad interpretation of Article 239 AA3A to provide NCTD with vast executive and co-extensive legislative powers except in the excluded subjects. A combined reading of the majority opinion and the concurring opinions of Justice Chandrachud and Justice Bhushan indicates that the phrase "insofar as any such matter is applicable to union territories" does not restrict the legislative powers of NCTD. While the 2018 Constitution Bench judgment provides sufficient clarity on the interpretation of the phrase "insofar as any such matter is applicable to union territories," we find it necessary to deal with the arguments made by the Union of India that the phrase must be read in a restricted manner to limit the legislative power of NCTD on certain subjects in addition to already excluded subjects in List 2. Article 239 AA3A confers legislative power to the NCTD. However, it does not confer legislative power to NCTD over all entries in List 2. Article 239 AA3 provides multiple safeguards to ensure that the interest of the Union of India is preserved. First, Subclause A of Clause 3 removes 3 entries in List 2 from the legislative domain of NCTD. It provides that NCTD shall not have the power to enact laws on matters with respect to entries 1, 2, and 18 of the state list, and entries 64, 65, and 66 of that list insofar as they relate to the said entries 1, 2, and 18. Second, Subclause B of Clause 3 clarifies that Parliament has the power to legislate on any matter for a union territory, including on subjects with respect to which NCTD has legislative power under Article 239 AA3A. In other words, Parliament has a plenary power to legislate on a subject in any of the 3 lists of the 7th schedule for NCTD. Third, it provides that where there is a repugnancy between a law enacted by the Legislative Assembly of NCTD and a law enacted by Parliament, the latter will prevail. The law enacted by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void. Unlike Article 254, which provides for the overriding power of Parliament only on subjects in the concurrent list, Parliament has overriding power in relation to the NCTD over subjects in both List 2 and List 3. Fourth, the second proviso to Article 239 AAC provides that Parliament may enact at any time any law with respect to the same matter by including a law adding to, amending, varying, or repealing the law so made by the Legislative Assembly. Fifth, under 239 AA7A, Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions in the foregoing clauses of 239 AA, and for all matters incidental and consequential thereto. The article stipulates that such law shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368, which deals with the power and procedure to amend the Constitution. Thus, Article 239 AA3 balances between the interests of NCTD and the Union of India. Article 239 AA expressly excludes entries 1, 2, and 18 of List 2 from the ambit of the legislative competence of the Legislative Assembly.
239AA also stipulates that the legislative power of NCTD is excluded with respect to entries 64, 65, and 66 of List 2, insofar as they relate to entries 1, 2, and 18. Entry 1 deals with public order, entry 2 deals with police, and entry 18 deals with land. When we explain the entries, thus the exclusion of entries 64, 65, and 66 to the extent that it relates to entries 1, 2, and 18 from the legislative competence of NCTD indicates that the governance structure envisaged in Article 239AA for NCTD was only to exclude specific entries from its legislative competence. To read the phrase insofar as such matter is applicable to the Union Territories as introducing an implied exclusion of the legislative powers of NCTD with respect to certain other entries would be contrary to the plain meaning of the provision. Article 239AA establishes the Legislative Assembly for NCTD. The seats in the Legislative Assembly are filled by a direct election from the constituencies of NCTD. The Legislative Assembly of NCTD embodies the constitutional principle of a representative democracy. हाय, कैसे हो दोस्तों? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो विवाद चल रहा था उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उसमें ये कहा है कि दिल्ली सरकार जो है उसको पावर मिलनी चाहिए। एक्चुअल में ये विवाद क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसको एनसीटी के नाम से भी जानते हैं। अब भारत में आप देखते हैं कि दो तरह के स्टेट्स हैं। एक वो स्टेट जिसे हम राज्य के नाम से जानते हैं और दूसरे वो स्टेट जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो आखिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, राज्य जो है वो भारत के अंदर या तो भाषा के आधार पर बनाए गए थे या क्षेत्र के आधार पर बनाए गए थे। तो भारत के अंदर शुरुआत में कम राज्य थे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 29 राज्य जो है वो बनाए गए थे। अब उसके साथ कुछ ऐसे प्रदेश जिसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि पुडुचेरी, आपका चंडीगढ़, आपका दिल्ली, तो इस तरह से बहुत सारे जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक्चुअल में सबसे पहले और बेसिक सवाल यही आता है कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, जब राज्यों का निर्माण हो रहा था तो राज्यों का निर्माण किया गया तो उस समय कुछ ऐसे प्रदेश या तो वो बहुत अलग एरिया में थे या फिर ऐसे प्रदेश जो कि जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से छोटे थे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं थे कि उनको एक तरह से किसी राज्य के साथ मिलाया जा सके या उनको पॉसिबल नहीं था राज्य के साथ मिलाना। तो ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार ने अपने अधीन रख लिया और यही जो प्रदेश जो केंद्र सरकार के अधीन थे ये आपके केंद्र शासित प्रदेश कहलाए थे। अब जैसे पुडुचेरी है वो एक अलग एरिया था, अंडमान निकोबार है अलग एरिया था। तो इस प्रकार से कुछ अलग एरिया जहाँ पे जिनको राज्य के साथ मिलाया जाना पॉसिबल नहीं था, तो उनको, और इसके साथ साथ दिल्ली जैसे बड़ी सिटी थी, राजधानी थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि उसको किसी के साथ नहीं मिलाया जा सकता और इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको स्टेट घोषित किया जाए। तो इसलिए ऐसे जो क्षेत्र थे जो डायरेक्ट आपके केंद्र के अधीन आते हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो अब दिल्ली जो है उसका विवाद, आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी एक राज्य के रूप में वहाँ पे मुख्यमंत्री है वो भी निर्वाचित होता है। अब विवाद जो है उसकी जड़ और उसको विवाद उत्पन्न होने की स्थिति जो है वो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री होगा तो वो अपनी पावर, अपनी सत्ता और अपने हिसाब से जो प्रशासन है उसको चलाएगा। और अगर वहाँ पे साथ साथ में आपका केंद्र का भी एक तरह से हस्तक्षेप होगा तो फिर सीएम और वहाँ के एलजी जो है उसमें टकराव होना स्वाभाविक है। क्योंकि यहाँ पे टकराव सीएम और एलजी का नहीं है, यहाँ पे टकराव जो है वो आपका केंद्र और स्टेट का है। तो यही जो टकराव है वो हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। अब दिल्ली के जो गवर्नर है जिन्हें उप राज्यपाल के नाम से जानते हैं, जो प्रशासक की भूमिका में रहते हैं, जो प्रशासन से संबंधित काम जो है वो करते हैं। वहीं पे दिल्ली के सीएम हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल है जो आप पार्टी से है। वो अपने हिसाब से अपना काम करना चाहते हैं जनता के सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए।
लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कुछ ऐसे फैसले जिस पे केजरीवाल अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें उपराज्यपाल जो है प्रशासक के रूप में वो उसको रोक देते हैं या वो अपने हिसाब से सरकार को चलाना चाहते हैं। तो विवाद जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अब बात आती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो आपका जो आपका मई 2023 में दिया गया वो क्या है। मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और जिसमें आपके केंद्र सरकार और दिल्ली के प्रशासक को ये आदेश दिया गया है कि आप जो है वो केवल और केवल जमीन, पुलिस और लॉ, ये तीन, पहला आपका पुलिस पे, दूसरा आपका जमीन पे और तीसरा लॉ ऑर्डर पे दिल्ली के प्रशासक का पूरा नियंत्रण होगा। उसके अलावा जितनी भी कार्रवाई है, जितनी भी गतिविधियां हैं, उसके ऊपर दिल्ली जो सरकार है उसका पूरा नियंत्रण होगा। दिल्ली सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को चलाए। अब विवाद क्या था? विवाद ये था कि दिल्ली के अंदर जो भी आपके कर्मचारी थे, चाहे वो स्टेट से रिक्रूटमेंट हुए थे, चाहे आपके सेंटर से जिसमें आईएएस लेवल के जो अधिकारी थे, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना नियंत्रण चाहते थे ताकि वो सरकार का काम जो है वो सही ढंग से कर सके। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि दिल्ली का कोई भी कर्मचारी, चाहे वो आपका राज्य सरकार से रिक्रूटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर पूरा जो नियंत्रण है वो सरकार का रहेगा और दिल्ली सरकार का रहेगा, जिसमें कहने का मतलब पूरा जो नियंत्रण है वो सीएम का रहेगा। वो उन कर्मचारी को ट्रांसफर कर सकती है, उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला है वो आपका 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और इसी फैसले को आने के बाद में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपने एक जो सचिव थे, जो काफ़ी बड़े लेवल के अधिकारी थे, मौर्य, उनको हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेके ये विवाद चल रहा था। अब फैसला जो है वो क्या कहा पीठ ने और किस किस की पीठ जो है इस फैसले में थी। देखिए दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय पीठ थी और उस 5 सदस्यीय पीठ में सबसे महत्वपूर्ण जो भारत के सीजीआई है, मुख्य जो चीफ जस्टिस है भारत के, डी वाई चंद्रचूड़, उनके साथ दूसरे जो आपके जस्टिस थे एम आर शाह, तीसरे जो थे वो कृष्ण मुरारी और चौथे जो थे वो हिमा कोहली और पांचवे जो थे एम नरसिम्हा। इन 5 जजों की जो एक पीठ थी उसने ये फैसला दिया कि दिल्ली जो सरकार है वो अपने कर्मचारियों के ऊपर पूरा नियंत्रण कर सकती है और इसके साथ केंद्र को भी नोटिस जारी करते हुए ये कहा गया है कि केंद्र जो है वो अपने प्रशासक के माध्यम से केवल जल और आपके लॉ ऑर्डर को और इसके साथ साथ पुलिस को छोड़ के किसी पर भी नियंत्रण जो है वो न करे और अगर कोई प्रशासक द्वारा कोई चीज या कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें मंत्री परिषद मीन्स विधानसभा के जो आपका एक तरह से उसका विश्वास जो है उसके बाद ही कोई प्रशासन जो है फैसला लिया जा सकता है। अब ये हमने बात कर ली कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था, क्योंकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो है वो इस तरह की चीजें को चाहते थे। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र जो है वो अपने हाथ में संपूर्ण राज्य जो है उनकी जिम्मेदारी न ले। जो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है उस पर पूरा जो नियंत्रण है वो केंद्र के द्वारा नहीं किया जाए, बल्कि वहाँ पे अगर वहाँ पे चुनी हुई अगर सरकार है तो उसके भी अपने कर्तव्य है, उसके भी अपने दायित्व है और अगर वो जनता का काम करना चाहता है तो उनको अधिकार देने होंगे, जिसमें दिल्ली जो है उसके संबंध में इस बात को कहा गया है। अब यहाँ पे आता है दोस्तों एक आर्टिकल 239, आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 क्या था, पहले इसको जानते हैं। आर्टिकल 239 जो है उसमें ये कहा गया था कि भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र है, जहाँ पे आपका कह सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे संसद के द्वारा कानून बना के प्रशासन जो है वो किया जाएगा। मीन्स जो संसद जो है या जो केंद्रीय जो सरकार है उसके नियंत्रण में
ये आपके केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। यहाँ पे वो एक प्रशासक को नियुक्त कर सकती है, जिसको कई जगह राज्यपाल के नाम से जानते हैं, कई जगह प्रशासक के नाम से जानते हैं, और जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ 239 के क्लॉज 6 में यह कहा गया था कि अगर संघ ये चाहता है या संघ ये मानता है कि किसी क्षेत्र के प्रशासक के रूप में किसी राज्य के राज्यपाल को, अगर पास का राज्यपाल जो है उसको किसी क्षेत्र के जो है राज्यपाल को प्रशासक के रूप में लगाया जा सकता है। जैसे बात करें कि मान लो कि दिल्ली और आपका जो मान लो कि हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर आपका जो राज्यपाल है या पंजाब का जो राज्यपाल है उसको चंडीगढ़ का प्रशासक के रूप में लगाया जा सकता है, और वो संपूर्ण शक्तियां जो है उसका प्रयोग केंद्र सरकार के निर्देशानुसार करे या राष्ट्रपति के निर्देशानुसार करे। लेकिन यहाँ पे इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन जो है 2018 में 239 के संबंध में दिया था, और 239 का जो क्लोज है 239 239 239 ए एक क्लोज जोड़ा गया, और उसमें ये कहा गया था कि दिल्ली जो सरकार है उस पे प्रशासक के रूप में काम जो है वो प्रशासनिक के रूप में उपराज्यपाल करेगा, लेकिन वो पूरे के पूरे जो डिसीजन है वो खुद के बेस पे नहीं लेगा, बल्कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसे दिल्ली की विधानसभा जो है उसकी या मंत्री समूह जो है उसकी राय के बगैर वो कुछ भी नहीं करेगा। मीन्स 239 डबल ए के उपखंड बी में ये कहा गया था या क्लोज बी में ये कहा गया था कि दिल्ली के अंदर कोई भी फैसला जो है उपराज्यपाल द्वारा लिया जाता है तो उसके संबंध में उसके मंत्री समूह जो है उसकी राय लेना जरूरी है। तो कहने का मतलब इसी को रिपीट करते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने 2018 में भी ऐसा फैसला दिया था, और अब जो है 11 मई 2023 को ये फैसला हम देते हैं कि राज्यपाल केवल 3 बिंदु को छोड़ के, जिसमें आपका पुलिस है, जिसमें लॉ ऑर्डर है और जिसमें आपका जमीन है, उनको छोड़ के कोई भी अगर निर्णय लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके मंत्री समूह की राय जो है वो जरूरी है। तो इससे ये इफेक्ट जो है ये होगा दोस्तों, आपके दिल्ली जो है उसमें सीएम जो भी आएगा, अभी सपोज दैट सीएम केजरीवाल है, और आगे आने वाले भविष्य में भी अगर दिल्ली में कोई सीएम बनता है तो सीएम की पावर जो है वो दिल्ली में एक तरह से विस्तारित की गई है, और सीएम जो है वो अच्छे ढंग से काम कर सकता है। तो आई होप कि ये जो आप चीज़ें जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने किस तरह से केंद्र और आपके राज्यों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं या संघ क्षेत्र के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उनके संबंध में ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तो आई होप ये अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।